Hello बच्चों, in today's video we will discuss about the rate law expression and rate constant. How we express a rate of reaction and what is the rate constant. What is the value of the rate constant and rate expression of the reaction. Fine. We have discussed average rate of reaction, instantaneous rate of reaction and the factors affecting the rate of the reaction. On which factor rate of reaction actually depends. Clear? In this video we will describe the rate expression and rate constant. Suppose we have an elementary reaction A mole of A plus B mole of B, A mole of A plus B mole of B, changing into the product form. Then according to the law of mass action that we have studied in equilibrium of 11th class, rate is equal to the concentration of the reactant raised to power their stoichiometric coefficient. Small a and small b are the stoichiometric coefficient of the reactant A and B respectively. This one. Next, it becomes rate is equal to, when we remove the proportional sign, we put then constant K, A raised to power small a and B raised to power small b, A raised to power small a or B raised to power small b, where small a and small b are the coefficients of the A and B respectively. Clear? This law of mass action is applicable only for the elementary reaction. This one is applicable only for the elementary reaction. But suppose we have a complex reaction. If we have a complex reaction, clear? What will be happen in the complex reaction? In the complex reaction, the reaction will be take place in two or more than two steps. That reaction is called complex reaction, which take place in two or more than two steps. Clear? But in the complex reaction, the rate expression according to the rate law equation is equal to rate directly proportional to the concentration of the reactant X and Y raised to power, not the coefficient of the small x and small y, but we put the alpha and beta coefficient. These are not the coefficient. Alpha and beta, these are other terms. These are some other terms. ये कौन से टर्म्स हैं अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं. एलिमेंट्री रिएक्शन में कोफिशिएंट पावर में गया, देखो x और y, स्मॉल x और स्मॉल y कोफिशिएंट में गया. सॉरी, एलिमेंट्री रिएक्शन A में और B में स्मॉल a और स्मॉल b कोफिशिएंट में गया. लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये जो इसके कोफिशिएंट थे ये फिर क्यों नहीं गए भाई हमारे पास में उसकी पावर में. आइए देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको. मैं कहता हूं इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें हमेशा प्रॉब्लम पूछते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया. हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनल्स हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. क्या, मान लीजिएगा मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने. ए, बी और सी कोई एथलेटिक मीट हो रहा है और एथलेटिक मीट में ये तीन रनर हैं हमारे पास में, और ये 100 मीटर की रेस को फिनिश करेंगे. ए ने वो रेस 100 मीटर की जो है वो फिनिश की 15 सेकंड्स में, बी ने वही रेस फिनिश की 13 सेकंड में, और सी ने वही रेस फिनिश की 18 सेकंड में. बी इज द विनर. द विनिंग पार्टिसिपेटर बी एंड द लूजर इज सी. अब बी सबसे फास्ट था इसलिए वो जीत गया, कंप्लीटली उसी के ऊपर ही क्या किया है, डिपेंड किया है. सी का जो रेस को हार गया वो कंप्लीटली सी पे ही डिपेंड किया, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो किसी दूसरे पे डिपेंड करता हो नहीं, वो उसी पे डिपेंड करता है.
लेकिन मान लीजिए ये किसका एग्जांपल हुआ, ये हुआ हमारे पास में एलिमेंट्री का सिंगल स्टेप, खुद को ही फिनिश करना है अकेले को ही, एलिमेंट्री स्टेप हुआ ये, एलिमेंट्री प्रोसेस हुआ ये। लेकिन मान लीजिए हमारे पास में कोई रिले रेस हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है हमारे पास में, एक रिले रेस हमारे पास में एक हो रही है, और उस रिले रेस में हमारे पास में दो टीमें हैं, ठीक है, एक टीम है एक्स और दूसरी टीम है वाई। अब ये प्रोसेस जो है रिले का जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में होगा, ये 4 स्टेप्स में होगा, मतलब 2 और मोर देन 2 स्टेप्स में जो प्रोसेस फिनिश होगा उसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहेंगे। रिएक्शन में उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देंगे। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एलिमेंट्री सिंगल स्टेप, कॉम्प्लेक्स 2 और मोर देन 2 स्टेप्स में फिनिश होगा। अब आगे बढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा चीजों को, पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है वो। अब मान लीजिएगा ए बी के पास गया 15 सेकंड में, 15 सेकंड में गया, ये 16 सेकंड में गया, ये 13 सेकंड में गया, और ये 18 सेकंड में गया, ठीक है, और रेस को हार गए। किसकी वजह से हार गए, डी की वजह से। ओवरऑल टाइम में जो कंप्लीट टाइम लिया है रेस को फिनिश करने में, वो सबसे ज्यादा लिया डी ने, डी सबसे स्लो है, और पूरी रेस फिनिश भी तभी होगी जब डी अपना काम फिनिश कर देगा, जब डी अपना जो डी की जो रेस थी 100 मीटर की वो जो फिनिश कर देगा तब। लेकिन वो सबसे स्लो है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, वो सबसे स्लो है, तो ओवरऑल रेस का टाइम भी क्या होगा, बढ़ गया, ओवरऑल रेस का भी टाइम क्या होगा, बढ़ गया। यहां पे ये टीम जीत गई, ये हार गई, हार गई किसकी वजह से हार गई, ये इसकी वजह से। ये जीत गई क्योंकि ये क्या थी, फास्ट थी, ये हार गई क्योंकि ये स्लो थी। स्लो किसकी वजह से हुआ, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में ये स्टेप स्लो है, डी वाला स्टेप स्लो है, डी वाले स्टेप के स्लो होने की वजह से ओवरऑल रिएक्शन का रेट स्लो हो गया, इसमें ओवरऑल रिएक्शन का रेट स्लो हो गया, इसमें ओवरऑल जो फिनिशिंग द रेस है वो टाइम बढ़ गया, तो स्लो प्रोसेस हो गया आपका, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स का देता हूं। मान लीजिएगा मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी साइकिल बनाने की, और साइकिल में हम टायर बनाने का काम एक को दिया वर्कर को, हैंडल बनाने का किसी दूसरे को, एक्सल बनाने का किसी दूसरे को काम दिया, साइकिल चेन बनाने का किसी दूसरे को, और स्टैंड किसी के लिए, अलग अलग काम हमने दे दिए। मेरे को काम दे दिया साइकिल की चेन बनाना है, सभी ने अपने अपने पार्ट्स बनाए, मैन्युफैक्चर किए, और उन सबको असेंबल भी कर दिया। मैं 2 घंटे लेट आया अपने घर से ही, मैंने फिर आके आराम से बातें करनी स्टार्ट कर दी, जस्ट चिल, मैं मजे कर रहा हूं। फिर किसी ने कहा कि भाई काम तो कर दे, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी साइकिल का। मैंने काम करना स्टार्ट किया, मैंने एक चेन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया। लेकिन साइकिल क्या है, ओवरऑल प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या है, कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल कब बनेगी, जब मैं अपना काम फिनिश करूंगा, साइकिल चेन बनाऊंगा। मैं सबसे स्लो हूं, तो कंप्लीटली जो मैन्युफैक्चरिंग है साइकिल का वो मेरे पे ही डिपेंड कर रहा है कंप्लीटली। मैं ही बताऊंगा कि कितने टाइम में साइकिल कंप्लीट हुई। स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप ही किसी भी प्रोसेस का रेट डिटरमाइन करेगा कि वो स्लो है या फास्ट है, कितना स्लो कितना फास्ट है। मैंने साइकिल की चेन बहुत देर तक नहीं बनाई तो वो प्रोसेस स्लो हो गया। कंप्लीट मैन्युफैक्चर कब हुआ, जब मैंने काम फिनिश किया। मैं सबसे स्लो, तो मेरे पे सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जो 2 और मोर देन 2 स्टेप्स में होगी। पहली बात को ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। मुझे ये नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कि कोई भी रिएक्शन, हाँ यू गेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मुझे ये नहीं पता कि रिएक्शन जो है, मेरे को कोई रिएक्शन दे दी जाए, मैं और कोई पूछे कि ये बताओ स्लो, ये सॉरी एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो मैं हिंट थोड़ा सा पढ़ा है तो तुक्का लगा सकते हैं, हाँ ये होगा। एग्जैक्ट कोई दे दे, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी है वो मुझे नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, सभी रिएक्शन का नहीं पता है। हाँ पढ़ रखी है तो अलग बात है, पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पता चल जाए कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने स्टेप्स में फिनिश हुई वो नहीं पता है। रिले का तो मेरे को पता था 4 स्टेप में हो गई रिले। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो पता नहीं कितने कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगी। अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग रूट है उनका रिएक्शन को फिनिश करने का, और अलग अलग स्टेप्स में है रिएक्शन, अलग अलग मैकेनिज्म जब है तो क्या होगा, अलग अलग उन सभी स्टेप्स का रेट भी होगा, अलग अलग उन स्टेप्स का रेट भी होगा। तो उनका फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे रेट डिटरमाइन करना पड़ेगा। When we will find out the rate of the individual steps of the reaction, then we will compare the rate of all the steps of complex reaction, and that slowest step is the rate determining step. Clear? Slowest step is the rate determining step. मान लीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, मैं इसी को लेता हूं। मान लीजिएगा x मोल ऑफ x था, y मोल ऑफ y था, और प्रोडक्ट बन गया आपका P। लेकिन बीच में इनके एक कोई स्टेप आया, बीच में कोई एक स्टेप बता रहा हूं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ये फिनिश हो गई नंबर ऑफ स्टेप्स में। लेकिन इसका स्लोएस्ट स्टेप मैं एक बार बताता हूं आपको। मान लीजिएगा बीच का एक स्लो स्टेप हम अज्यूम कर लेते हैं, एक स्लोएस्ट स्टेप हम लेके चलते हैं, इसका स्लोएस्ट स्टेप ले लेता हूं। स्लोएस्ट स्टेप ले लिया मैंने, C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D चेंज हो गया इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में चेंज हो गया वो, क्योंकि प्रोडक्ट तो क्या बना है, प्रोडक्ट तो आपका P बना है, वो P अभी नहीं बना, बीच का स्टेप है ये। तो ये क्या है, एलिमेंट्री स्टेप है किसका, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये एलिमेंट्री स्टेप है, और ये एलिमेंट्री स्टेप सबसे स्लो है, तो ये ही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा इसका। यही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इसको अगर मैं, एलिमेंट्री स्टेप है ऑब्वियस, तो एलिमेंट्री स्टेप है तो मैं इसको किस में रिप्रेजेंट करता हूं, रेट लॉ की फॉर्म में किस क्या लगा दूंगा, लो ऑफ मास एक्शन लगा दूंगा। तो क्या बन जाएगा, लो ऑफ मास एक्शन रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ द C रेज्ड टू पावर कोएफिशिएंट स्मॉल c कंसंट्रेशन ऑफ द D रेज्ड टू पावर स्मॉल कोएफिशिएंट D। क्लियर? अल्फा और बीटा क्या हुआ, यहां पे स्मॉल c और स्मॉल d हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, स्मॉल c प्लस स्मॉल d हुआ, इक्वल हुआ। ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज हैं किसकी, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज हैं। और वो कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटली हम रेट को कंपेयर करना पड़ेगा, रिएक्शन के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने एलिमेंट्री स्टेप्स हैं उन सभी के रेट को एक्सप्रेस कर, सभी का रेट हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, फिर उनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कौन सा सबसे स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप में भी नॉट द 100% श्योर, स्लोएस्ट बिकॉज सम अदर फैक्टर्स आल्सो, तो उसका होगा वो स्मॉल c और स्मॉल d क्या होगा, उसका अल्फा प्लस बीटा होगा उस रिएक्शन का, उस एलिमेंट्री का, नॉट द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। ये हो सकता है आपका C प्लस D भी हो, या हो सकता है कुछ डिफरेंट भी हो, लेकिन ये हम ये अल्फा और बीटा रिएक्शन को देखकर, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अगर हमें देखकर कोई कहे कि इसका अल्फा बीटा बताइएगा, तो मुझे अल्फा और बीटा नहीं पता है, इसका किसी को भी नहीं पता चलेगा किसी भी रिएक्शन का कि अल्फा और बीटा क्या होगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज हैं बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज हैं। ये किसी भी क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेंगी, किसी भी क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेंगी, क्योंकि हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये एलिमेंट्री प्रोसेस है, एलिमेंट्री प्रोसेस में मुझे पता है कि कंप्लीटली उसी पर डिपेंड करेगा। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में तो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टेप कितने, कौन से स्टेप का क्या रेट है और कौन सा सबसे स्लो स्टेप होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मुझे सबसे स्लो स्टेप निकालना पड़ेगा, सबसे स्लो स्टेप इज क्या होगा, उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर मैं रेट लिखूंगा, रेट एक्सप्रेस करूंगा, तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रिएक्टेड रेज्ड टू पावर अल्फा, y रिएक्टेड रेज्ड टू पावर बीटा, where alpha plus beta is order of the reaction, alpha plus beta is order of reaction, and rate becomes rate is equal to k concentration of the x raised to power alpha concentration of the b raised to power beta,
सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ द एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ द वाई, तो ये हो गया आपका के क्या होगा इसमें, रेट कांस्टेंट होगा, के क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा, और ये क्या होगा, रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस हमने कर दिया। और रेट को मैं अगर रिप्रेजेंट करूं किसमें, इंस्टेंटेनियस में, रेट को रिप्रेजेंट करूं इंस्टेंटेनियस में, तो क्या होगा बताओ, कल मैंने बताया था इसका क्या हो जाएगा, माइनस रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, माइनस 1 बाई कोफिशिएंट स्मॉल एक्स डी कैपिटल एक्स अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ द एक्स रेज्ड पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ द वाई रेज्ड पावर बीटा, वेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So this is the law of mass action and rate law equation. Rate law equation. This is the rate law equation for the complex reaction and for the elementary reaction. Clear? This is for today's video. Thank you.